So let us understand what is a perceptual process. As we can see from this particular diagram, perceptual process has got three major stages. First is the input, then the throughputs and the output. So when we see the inputs are given in the form of the stimulus. You have sensory organs which are getting and receiving the stimulus from the environment. That is being processed over here in this stage, and the resultant action is actually your behavior. So once you get any stimulus, based on that, the perceptual throughputs are, first of all, you receive that particular stimulus, then you select it, you organize it, and then you interpret it. So selecting, organizing, and interpreting can be seen in a different way. For example, a group of children playing near an elephant, and they are very close to the elephant. Everyone will see a part of the elephant, but not the entire elephant as such. Someone will see the elephant, someone will just touch and feel the elephant, and someone will just try to just visualize it with the help of whatever the body part or the structure they can see. Same is the case with the perceptual throughputs. Whatever stimulus you are receiving, based on that, you select it, you process it, and then after processing, the output is in the form of the action or the behavior. So this is the simplified process. आपको पहले तो जैसे फॉर एग्जांपल आज किसी टीचर ने आपको डांट दिया कि आप क्लास में टाइम पे नहीं आते हैं, आपको वो स्टिमुलस मिला, उसके बाद आपने दिमाग में उसको रखा, ऑर्गेनाइज किया, आपने कहा कि चलो अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि मैं टाइम पे रहूं, और उसके बाद इंटरप्रिटेशन आपने ये किया कि आपकी भलाई के लिए आपको बोला गया है कि आप क्लास को टाइम से अटेंड करिए, अदरवाइज आपका ही लॉस होगा। तो फर्दर एक्शन आपका क्या होगा, नेक्स्ट टाइम यू विल बी ऑन टाइम। मैंने आप लोगों को बोला कि काइंडली ओपन अप योर कैमरा सो दैट आई कैन सी यू एंड कैन हैव वर्चुअल फेस टू फेस इंटरेक्शन विद यू while during the session. Someone has done this activity in the beginning of the sessions and has stopped. Someone has not even done, not even for a single time, and someone is still doing till the date. So all the people whom I am interacting with in this particular virtual training program are giving the response to the same stimulus in a different manner. The actions are different in every case. So therefore, the perceptual process is being defined in this way. You are getting a stimulus. After receiving, you select, organize, interpret it in your own language. For what reason, for what purpose the teacher has scolded you. Same is the case with the other things also, other stimulus also. For example, if you are touching a hot pan, that hot pan will immediately give you the sensation that it is very hot and it might create a burn. Immediately you will stay away from it, or immediately you will avoid that touching, and the action would be avoiding that particular touching of pan. So it's a very simple process. Now let us understand what is a perceptual process. आप किसी चीज का परसेप्शन बनाते हैं, उसका प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि परसेप्चुअल थ्रूपुट्स आर रिसीविंग, सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, एंड हियर इनपुट्स आर द स्टिमुलस. सो वंस वी एंटर ओवर हियर वी सी कि हमें जो थ्रूपुट्स है, जो एक टोटल प्रोसेस है परसेप्शन का, वो यहां से चालू होता है. यहाँ सबसे पहले आपको कोई स्टिमुलस रिसीव हुआ, उस स्टिमुलस के हिसाब से आपने उसको सेलेक्ट किया. आपके दिमाग में 50 चीजें चलती हैं, 50 जगह से आपको स्टिमुलस मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते करते इमीडिएट आपका पैर साइलेंसर में छू जाता है, इमीडिएट आपको झटका लगता है और आप एकदम से चौकन्ने होके बैठ जाते हैं. वही गाड़ी चलाते वक्त आजू बाजू में ट्रैफिक भी बहुत है, आपके कान भी उनको सुन रहे हैं, साथ में आप देख भी रहे हैं कि कितनी भीड़ है, उसको भी आपको स्टिमुलस मिल रहा है. लेकिन आपने सेलेक्ट क्या किया? आपने सेलेक्ट वो किया जो इमीडिएट, जिस पे आपको एक्शन लेना था. और वो क्या था? साइलेंसर बहुत गर्म था, जिसकी वजह से आपको एक स्टिमुलस मिला. इमीडिएट आपको दिमाग में आया कि आपका पैर साइलेंसर के ऊपर चला गया है, आपने उसको हटा दिया. तो आपके पास एट ए टाइम 50 स्टिमुलस होते हैं जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स कंटिन्यूस रिसीव करते जाते हैं. बट उसमें से किसको सेलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है और रिएक्ट करना है, ये डिपेंड करता है आपके ब्रेन के ऊपर. आपका ब्रेन सेलेक्टिव हो जाता है.
हर किसी स्टिमुलस को रिसीव करके वो रिएक्ट नहीं कर सकता, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप फोन पे हैं, आप फोन पे बात कर रहे हैं किसी से, सामने आपको आपके बॉस ने आपको बुला लिया, आपने इमीडिएट बॉस को देखा और अपना फोन कट कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका एक परसेप्शन है कि बॉस को हमेशा प्रायोरिटी देना है। तो आपने जो स्टिमुलस रिसीव किया, आप फोन पे भी बात कर रहे हैं, भले ही वो कितनी इंपॉर्टेंट बात हो, लेकिन आपने इंपॉर्टेंस दी अपने बॉस को, आपने अपने बॉस के वर्ड्स को इंपॉर्टेंस देते हुए इमीडिएट फोन कट कर दिया, भले ही वो कितना इंपॉर्टेंट पर्सनल कॉल था। तो यहाँ पे क्या होता है, यू रिसीव द स्टिमुलस, यू सेलेक्ट सम ऑफ देम, यू ऑर्गेनाइज इट ऑन द बेसिस ऑफ टॉप प्रायोरिटी टू द लोवेस्ट प्रायोरिटी, कि सबसे पहले किसको देखना है, एंड देन रिएक्ट इट एंड देन चेक इट। फॉर एग्जाम्पल, दोस्त साथ में मैच देखने के लिए गए, अब उसमें से किसी को प्यास लगी, उन्होंने कहा कि यार ये ओवर देख लें उसके बाद चलेंगे। अब दूसरे किसी को भूख लगी है, उसको भी उसने फ्रेंड्स ने बोला कि अभी ये ओवर खत्म हो जाते हैं उसके बाद हम कुछ ऑर्डर करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हर किसी को अपने अपने स्टिमुलस मिल रहे हैं, सबने अपनी प्रायोरिटी पे उसको अरेंज करके रखा है। हो सकता है कि जिसको प्यास लगी उसको भूख भी लगी हो, और हो सकता है जिसको भूख लगी उसको प्यास भी लगी हो, लेकिन उसने ऑर्गेनाइज करते समय टॉप प्रायोरिटी पे भूख को रखा एज कंपेयर टू द थर्स्ट। सो एवरी पर्सन इज हैविंग अ डिफरेंट परसेप्शन about life, about work, about organization, about things they are doing, about the surroundings, and about the situations. Based on that, they prioritize and they organize the things, and then they interpret it, check it, and then finally they react. इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है अपनी ही लैंग्वेज में समझना या अपने दिमाग को समझाना कि कौन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस में आपको इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है, किस में इमीडिएट एक्शन नहीं भी लिया तो चलेगा। तो ये आपको स्टिमुलस जो मिलते रहते हैं उसके बेसिस पे आप वो काम करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप घर पे हैं, घर पे आप एक वर्चुअल मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कंपनी में आपने वर्क फ्रॉम होम, आपको ऑलरेडी मालूम है कि चालू हो चुका है, कई सारी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग डे टू डे बेसिस पे करती हैं। तो आप मीटिंग करते करते आपने देखा कि आपका डोर खुला हुआ है और पीछे से आपकी फैमिली का कोई मेंबर डोर के अंदर एंटर कर जाता है। इमीडिएट आपका ध्यान अपने फैमिली मेंबर की तरफ जाएगा, भले ही कितनी मीटिंग इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि आपका परसेप्शन ये है कि इसमें अगर बैकग्राउंड में कोई आता है तो इट क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस। तो आपने अपने दिमाग में ये इंटरप्रिटेशन करके रखा है कि if someone comes on the back end, that person might create a disturbance. It is better to have a meeting at an isolated place in the home. So ये इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे आपने चेक किया, चेक करने के बाद आपने सीधे रिएक्ट किया, आपने घर वाले को इशारा कर दिया कि आप यहाँ से रूम से जाओ। तो परसेप्शन है, हर जगह परसेप्शन होता है। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आप वहां पर जाके आप सबसे पहले आपकी आंखें, आपके कान खुले रखते हैं, आप वहां पर जाके सबसे पहले इंक्वायरी करते हैं कि उस पर्टिकुलर डिसीज का या उस इलनेस का सबसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर उस हॉस्पिटल में कौन है। वो लोग बताएंगे आपको दो तीन नाम, उसमें से आप सेलेक्ट करते हैं। हो सकता है कि आप वहां किसी पेशेंट से बात करें और पेशेंट को पूछें कि डॉक्टर कैसे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में आपने क्या किया, स्टिमुलस जो भी आपको मिल रहा है उसको सेलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, आपने कहा कि यार ये डॉक्टर ज्यादा बेटर लग रहा है इन कंट्रास्ट टू अदर्स। उसी इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे आपने उस डॉक्टर को चेक किया और फाइनली उस पर रिएक्ट किया। तो दिस परसेप्चुअल प्रोसेस गोज थ्रू द थ्रूपुट्स, ये थ्रूपुट है। अब आप देखेंगे यहां पर कि आउटपुट क्या होता है। जब आप परसेप्चुअल आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट ये होता है कि आपका एक ओपिनियन बन जाता है किसी के बारे में। जब आप इस प्रोसेस से होकर गुजरते हैं, आप डॉक्टर के बारे में ओपिनियन बना लेते हैं उससे मिलने से पहले ही कि ये डॉक्टर सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आपको वहां लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया, राइट फ्रॉम द नर्सिंग स्टाफ टू द रिसेप्शन टू द पेशेंट्स, everyone has given a very positive feedback and therefore you have made an opinion about the doctor that the doctor is very good. Feeling, अगर आपको अच्छा ट्रीटमेंट किया डॉक्टर ने, आपसे अच्छे से बात की, अच्छी कर्टसी दिखाई, आपको इमीडिएट फील हो जाता है, आप कहते हैं बाहर निकल के यार ये डॉक्टर बहुत बढ़िया है। वो इतना बड़ा डॉक्टर है लेकिन उसको बिल्कुल भी ईगो नहीं है, उसने बिल्कुल प्यार से मेरे से पूछा, उसने बात की, बात करने के बाद उसने सारी डिटेल्स लिखी और उसके बाद उसने प्रिस्क्रिप्शन दिया। सो दिस इज द फीलिंग अबाउट एनी डॉक्टर। आप होटल में जाते हैं, होटल में आपने क्या देखा, वहां पे किस तरीके से खाना सर्व किया जा रहा है, जो वेटर्स हैं उनकी क्या ड्रेस है, उसके बाद वहां पे खाने की अगर कोई स्मेल आ रही है तो वो भी आप स्मेल लेके एक तरीके से आप एक इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर खाने की क्वालिटी क्या होगी।
ऊपर से उसके जो एम्बियंस है उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे क्या है। सो ये सब परसेप्शन बनाता है आपका। कुछ दिन पहले मैं अपने फैमिली के साथ में एक रेस्टोरेंट में गया। द मोमेंट आई एंटर्ड इन द रेस्टोरेंट, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एंटर। आई सॉ दैट some people were sitting on the corner side and they were staring at the other customers. Just by looking at them, I just tried to understand what is going on. Then I thought that this is not a good place for my family. Immediately I decided to take my family back from that place. This is the perception. I might be wrong at that point of time, but then perception is being determined by the stimulus. You select it, you prioritize it, you organize it, finally you interpret it in your own way, and then based on the interpretation you react it, and then you made an opinion in your mind that this is good, this is bad, this is highly positive for me, this is highly negative for me, this is injurious to my health, this is harmful to my health, and this is really very good for my health. All these things you can make on the basis of perception only, right? पतंजलि मेडिसिन क्या करती हैं? ये लोगों के परसेप्शन को चेंज करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि पतंजलि एक आयुर्वेदिक ब्रांड है, बाबा जी का ब्रांड है, उन्होंने योग से उसको जोड़ के रखा है। इंडिया में सबसे पावरफुल ब्रांड में अगर बात की जाए तो पतंजलि इज वन ऑफ देम, बिकॉज उन्होंने आयुर्वेद की हिस्ट्री को लेके, उसकी स्क्रिप्ट को लेके, योग को उसमें मिलाकर लोगों को एक ऐसी मेडिसिन और ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। भले ही लोगों ने उसको टेस्ट नहीं किया, बट लोगों के दिमाग में एक ओपिनियन, एक फीलिंग आ जाती है कि ये इंडियन ब्रांड है, ये हमें चीट नहीं करेगा, ये इंडियन ब्रांड है, दिस विल फुलफिल द कमिटमेंट वॉट एवर द ब्रांड हैज मेड in terms of their products, and that is how the people have a very positive perception about the brand. आज पतंजलि देखते देखते मार्केट लीडर बन गया है एफएमसीजी कैटेगरी में, और इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द ओपिनियन एंड फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज ऑफ द पीपल। वैल्यूज क्या है? आयुर्वेद का उन्होंने उसने काफी स्टडी की, स्क्रिप्ट को फॉलो किया आयुर्वेद की, योग के साथ में मिलाकर लोगों को प्रोडक्ट सेल करना चालू किया और ये दिखाया स्वदेशी। जब स्वदेशी की बात आई तो लोगों के अंदर वो देशभक्ति की भावना जाग गई और उन्होंने ये जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स थे उसके ऊपर इस पर्टिकुलर ब्रांड को प्रायोरिटी दी। यही एक रीजन था कि बड़ी बड़ी कंपनीज फेल हो गई। बाबा जी से पूछा गया कि आपके सक्सेसफुल होने का राज क्या है, तो उन्होंने केवल एक ही चीज बोली, देशभक्ति। वो देश के लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं जिससे देश आगे बढ़े। तो ये फीलिंग, ये माइंडसेट जब ये अपना शेयर किया, तो जो भी कंज्यूमर, जो भी व्यूवर्स उनको देख रहे थे, उनके दिमाग में एक मैसेज गया कि ये पैसे कमाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन है लोगों को हेल्प करने के लिए, बेनिफिट, उनकी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, और इसीलिए लोगों का एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया। सो परसेप्शन का बहुत पॉजिटिव, निगेटिव या न्यूट्रल कैसा भी इंपैक्ट पड़ सकता है। आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में ट्रैवल करते करते आपने देखा कि कुछ लोग जो नॉन सोशल एलिमेंट्स हैं वो उस बोगी में, जनरल बोगी में चढ़ जाते हैं और वो इधर उधर देख रहे हैं और जोर जोर से बातें कर रहे हैं। इमीडिएट आपका मन करता है कि आप उस बोगी से उतर के नेक्स्ट स्टेशन पे शिफ्ट कर जाएं। क्यों? क्योंकि आपका परसेप्शन ये बोलता है कि ऐसे लोग जहां कहीं पर भी होंगे, नॉन सोशल एलिमेंट्स वेर एवर दे आर, दे माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अदर्स एंड इट विल बिकम chaotic and disturbing atmosphere for you. And for that purpose only, sometimes you change the bogie even if you have not reached the destination, because you have that opinion and feeling, and that makes an attitude about the persons. It happens. लास्ट ईयर की बात है, गणपति का मिरनवुक था और मिरनवुक लोनावला में करने के बाद करीब 25 से 30 लोग फर्स्ट क्लास में घुस गए विदाउट टिकट, and everyone was shouting and yelling and abusing and hurling abuses to each other, means the group of friends. These were around 25-26, and the age group was from 20 plus to 40 plus, and they were creating a ruckus inside the bogie. Even though it was a first class, many of us, including myself, who were regular passengers and regular traveler, because we had the pass of first class, we decided to get down from the train and to change that particular bogie, because they were not making any passage and any scope for others to just get down from the train. So we decided, we 5-6 people had decided to get down. When we decided to get down, we saw that around 15-20 people, they joined us, and they decided to just leave that bogie, and then they just entered in another bogie. So this is how the things are.
perception, values, and beliefs. Everyone it is suffering, everyone it is experiencing, everyone it is facing, but the overall reaction is different. I have reacted probably in a different way. Some other person might close the eyes and close the ears and would probably sit and travel in the same bogie where these people were traveling. So all these things are the reactions based on the perception of person. And then I have also observed that some people were very comfortable while sitting in the same bogie because earlier they were not having the place to sit. But then when 15-20 people got down from the train and they alighted in the next bogie, by that time this bogie was already empty, and then those who were standing, they got the opportunity to sit. So this is how the things are. When we talk about the values, values are very important things. Every organization has their value. Every individual has their own value. And values are formed because of the culture, because of the beliefs, because of the customs, because of the traditions. And based on the values, you do the things. For example, we celebrate Chhatrapati Shivaji Maharaj anniversary, the Jayanti. And there is lot of celebration. This is why, because we give lot of respect to him as a leader, as a king, and we know the great contribution and the sacrifices made by this great king who has made our Maharashtra state free from this particular the Britishers. So all these things are the examples wherein we have imbibed the values, and these values have been represented in our actions, in our opinions, and in our attitudes. Now, when we talk about the stimuli, what are the characteristics of stimuli? Stimulus can have different intensity for different people. It might have a low intensity, it might have a very high intensity. Low intensity means someone might not get affected because of the loss of the cricket match. Indian team had lost the first T20 match. Someone might not be so much bothered about it, but there are some people in our country only who keep the cricket very close to their heart. And lot of hearts have got broken when India lost their first T20 match. At the same time, when India won the series, lot of hearts were very cheerful and very happy in India and abroad. Those who keep that patriotic feelings inside their heart. So all these things are the example. The same match, but different intensity for different people. Someone might not be bothered what is going on. Someone might have just seen the score and has just got the satisfaction that India has won the series. Someone might have seen every single ball which was delivered and every single player who had come for the batting. So these are the things in case of cricket match. Life is also very resembling with the cricket match. You never know what is going to happen next. You always keep on predicting and predicting, and your confidence, your resilience takes you to the victory. Now, when we talk about the intensity, every person receives the intensity in a different manner. For example, a teacher is scolding in the class. Every student is being scolded by the teacher who has not brought the assignment on a given date. Some student will take it very close to their heart. Some people will start crying, while someone would be very happy. They would be unaffected what is happening in the class. They would say it is a routine affair, and they are not bothered about it. While some others will feel a matter of embarrassment, and then they will make sure that next time such things won't happen. So this is the intensity. Different people get the same stimulus in different intensity. For example, if someone is very fond of travel and adventure, while other is not fond of that, the person who is very fond of travel and adventuring and mountaineering activities will probably become very delightful and very happy and get an ecstasy if someone takes them to such kind of adventure or such kind of outbound trips. While at the same time, those who are not enjoying, for them it would be just a boring activity, and for them it would be just a traveling, simple traveling, and would not make any sense to them. So intensity is different for different people. Now आज की तारीख में हम लोग बात करते हैं कि सब कुछ नेचुरल वे में वापस आ रहा है. कुछ लोग अभी आपने देखा होगा चूल्हे की रोटी खाने के लिए दूर दूर तक जाते हैं खाना खाने के लिए, और वही कुछ लोग जो होते हैं वो चूल्हे से बचना चाहते हैं क्योंकि उसका धुआं,
उनकी आंखों को खराब कर सकता है, उससे उनको पॉल्यूशन, या उनको लगता है कि ये हाइजीन नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, एक ही स्टिमुलस है फूड, जिसको आपके टेस्ट बड्स एकदम से माउथ लिकिंग या माउथ वाटरिंग या लिप स्मैकिंग जो डिशेज होती हैं वो आपके दिमाग में आते ही आपको लगता है कि चलो जाते हैं खाने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं इतनी दूर जाने की बजाय घर में ही कुछ बना लेते हैं। तो इंटेंसिटी अलग अलग है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज में कंटिन्यूअस एक एक्सपोजर में रहते हैं किसी स्टिमुलाइज के, उसके बाद इमीडिएटली अगर आपको शिफ्ट किया जाता है तो वो उसका इम्पैक्ट, जो प्रीसीडिंग इम्पैक्ट है, वो आपके दिमाग में रह जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर कभी किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाएंगे जहां पर हैवी मशीनरीज और डाइज होती हैं, जहां पर स्टैंपिंग होती है, मशीन आती है ऊपर से डाई और बिल्कुल धम से आवाज आती है और वो डाई प्रेस करती है मेटल पार्ट्स को। उस जगह पे लोग ईयर डिफेंडर लगा के काम करते हैं। ईयर डिफेंडर लगाने के बाद भी जब वो 9 घंटे 10 घंटे की शिफ्ट के बाद बाहर निकलते हैं तो वो ऐसा फील होता है कि जैसे वो अभी भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और वो कुछ भी जो नॉइस वाली चीजें होती हैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दिन वो नॉइस में गुजार के आते हैं, उसके बाद उनको बहुत ज्यादा शांति चाहिए रहती है। वो डिस्टरबेंस बिल्कुल पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो पूरे दिन वो आवाज में, वो नॉइस में बिता के आने के बाद उनका माइंड रेडी नहीं होता फर्दर नॉइस को लेने के लिए। सो इट इज काइंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ये कुछ इस तरीके से है कि अगर आप एक सर्कल में जिसमें कलर है, आप उसको कंटिन्यूस देखेंगे और देखने के बाद अगर आप इमीडिएटली दूसरे सर्कल की तरफ शिफ्ट करेंगे जो बिल्कुल ब्लैंक है, तो आपको वो जो सर्कल जिसमें कलर था वो कलर आपको इस ब्लैंक सर्कल में दिखाई पड़ेगा। ये एक तरीके का कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट होता है। ये तो मैंने आपको विजन के फॉर्म में बता दिया। अगर आप कहीं ऑफिस से आ रहे हैं, ऑफिस में आज आपका दिन बहुत खराब गया, आपको बहुत वर्क प्रेशर था, बॉस के साथ में भी आपकी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गए, घर आने के बाद आपका मूड कैसा रहेगा? आप बिल्कुल डाउन फील करेंगे। बिकॉज आप वो परसेप्शन, वो जो इंटेंसिटी है उसको दिमाग से निकाल नहीं पा रहे, और उसकी वजह से घर में भले ही कितना सेलिब्रेशन का माहौल हो, यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय इट। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रास्ट। जब चीजें आपके साथ कंटिन्यूअस बेसिस पे होती हैं एक, तो उसके बाद जब इमीडिएटली आप उससे हटते हैं तो वो पहले वाला जो भी फीलिंग होता है, स्टिमुलस होता है, उसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट रह जाता है। नेक्स्ट इज द रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब ये है कि कोई चीज आपके लाइफ में अगर रिपीटेडली होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, मेरे जैसे इंसान को भी ट्रैवलिंग बहुत पसंद थी, बट व्हेन इट बिकेम द रिपीटेटिव टास्क, हर दिन मुझे 60 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ रहा है, उस रिपीटिशन की वजह से मेरा परसेप्शन अब बिल्कुल न्यूट्रल हो गया है। आई एम नॉट एट ऑल एंजॉइंग माई ट्रैवलिंग एट ऑल, बिकॉज of the same reason I shifted here in Pune, in Pimpri, during the lockdown, and the travel time was reduced to only 5 minutes. Earlier it was 1.5 hours. So this is what the repetition can do. आपको लाइफ में अगर कोई चीज रिपीटेटिव लग जाती है तो उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, आप उसको उतना ज्यादा वैल्यू नहीं देते। और वही अगर कुछ रिपीटिशन से हटके अगर कोई काम करते हैं, स्टीरियोटाइप से हटके अगर कुछ करते हैं, तो उसमें नॉवेल्टी आ जाती है, नयापन आ जाता है। जितना नयापन आता है आप उसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस इज। नेक्स्ट इज द साइज। अब आप स्टिमुलस आप ये देखते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे आपको मिल रहा है, कौन कौन से स्टिमुलस मिल रहे हैं एक साथ। एक दिन बॉस ने डांटा, उसी दिन आपका गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया, उसी दिन आपको एक बैड न्यूज भी मिली, रिलेटिव्स की डेथ हो गई। तो ये जो चीजें हैं, इंटेंसिटी इन साइज, ये डिटरमाइन करती है कि आपका परसेप्चुअल प्रोसेस में आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, मूवमेंट क्या रहेगा। आप आप जब स्टिमुलस मिलता है तो आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, आप कैसा एक्शन, आपका क्या होता है। आप उस जगह पे शांत हो जाते हैं, महेंद्र सिंह धोनी की तरह, जितना भी प्रेशर हो उसको बिल्कुल शांत दिमाग से, कूल माइंड होके उसको सोचना समझना और उसके ऊपर एक्ट करना, या आप एकदम से पैनिक हो जाते हैं। देन आता है स्टिमुलस का फैमिलियरिटी। अभी आपने वेल्डिंग करने वालों को देखा होगा, जब वो वेल्डिंग करते हैं तो इमीडिएट अपने आंखों के आगे ग्लास लगा लेते हैं। ये टेंटेड ग्लास लगाने के बाद उनकी आंखों को वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो व्हेन यू आर अवेयर अबाउट एनी स्टिमुलस कि इसकी वजह से जो चमक आएगी, आप आंखों को बंद कर लेते हैं या आप आपके आगे ग्लास लगा लेते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ फैमिलियरिटी। इफ यू आर वेरी मच फैमिलियर टू अ स्टिमुलस, the response will be neutral, because your perception will tell that you can deal with the situation very well. If you are not at all familiar, then you will be anxious, you will have the feeling that somewhere it might cause trouble to you. So these are the characteristics. Now characteristics of the perceiver, जो ये समझ रहा है, जिसको बेसिकली परसीवर वो होता है
जो ये रिसीव कर रहा है, राइट। अभी आप देखेंगे साइकोलॉजिकल नीड्स, हर किसी की अपनी अपनी साइकोलॉजिकल नीड है। कोई फूड एयर वाटर शेल्टर के लिए काम कर रहा है, तो कोई अपने एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए काम कर रहा है, कोई समाज में एक अपनी रेपुटेशन बनाना चाहता है, कोई रेपो बनाना चाहता है, कोई सेलिब्रिटी बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई बहुत प्रॉफिट कमाना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है, कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, और कोई दूसरा बिजनेस प्रोफेशनल बनना चाहता है। तो यहाँ पर हर किसी की अपनी अपनी एक साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं और उसके हिसाब से वो परसेप्शन उनका बनता चला जाता है। बैकग्राउंड एक्सपीरियंस, उनकी लाइफ में पहले का जो एक्सपीरियंस होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके परसेप्शन को लेके। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको कॉन्ट्रास्ट का ही एग्जांपल दूंगा बैकग्राउंड एक्सपीरियंस में। एक टीचर ने एक ऐसे दिया स्टूडेंट्स को लिखने के लिए, स्टूडेंट्स आर बीन आस्क्ड टू राइट एन एसे। अब स्टूडेंट्स ने जब ऐसे लिखा तो सभी का ऐसे बहुत पैथेटिक था, सबका ऐसे ऐसा था कि उसमें जो लिखना था वो ना लिख के स्टूडेंट ने सब कुछ लिखा। अब टीचर क्या करता है, टीचर के दिमाग में एक फीलिंग तो आ गई कि क्लास में किसी ने ऐसे अच्छा नहीं लिखा, लेकिन उसी में से अगर कोई अच्छा थोड़ा सा भी अगर अच्छा ऐसे लिख देता है तो टीचर उसको अप्रिशिएट करता है। क्यों? वो ऐसे भले ही अच्छा ना हो, लेकिन औरों के कंपैरिजन में जो वर्स्ट थे, वर्स्ट के साथ में कंपेयर करने के बाद उसको वो पॉजिटिव लगा। सो दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव कंट्रास्ट। निगेटिव कंट्रास्ट क्या होता है? आप किसी निगेटिव के साथ में कंपेयर करते हैं तो दैट बिकम्स अ निगेटिव कॉन्ट्रास्ट। पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट कब होता है? जब वर्स्ट के साथ में कंपेयर करोगे तो अपने आप को बेटर पाओगे। जैसे एक स्टूडेंट अपने घर में आके बोलता है, पापा मैं 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया। पापा कहते हैं 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया, कैसे हो गया? तो वो बोलता है कि अरे दूसरे क्लास में बच्चे हैं वो तो 6-6 7-7 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, मैं तो केवल 4 सब्जेक्ट में फेल हुआ हूं। सो दैट द बॉय इज ट्राइंग टू हाईलाइट द पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट, कि वो उसने वर्स्ट के साथ कंपेयर करके बता दिया कि ये देखो ऐसा ऐसा है, राइट। निगेटिव कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? निगेटिव कॉन्ट्रास्ट वही, अगर पेरेंट्स कंपेयर करने लग जाएं कि क्लास में कितने लोग पास हो गए, वो बोलेगा क्लास में 32 स्टूडेंट पास हो गए जिन्होंने ऑल क्लियर किया है। अब पेरेंट्स अगर ये बोलने लग जाएं कि अरे वो क्लास में 32 पास हो गया, तू 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया, इसका मतलब तू डिजर्व नहीं करता, इसका मतलब तूने पढ़ाई नहीं की, तो यहाँ निगेटिव कॉन्ट्रास्ट हो गया, रिजल्ट अपोजिट रिजल्ट के साथ में कंपैरिजन किया। सो यहाँ पे बैकग्राउंड एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। बैकग्राउंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपका परसेप्शन बनता है। आप किसी होटल में गए, आपको सर्विस अच्छी नहीं मिली, नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट गो टू द होटल अगेन बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड एक्सपीरियंस। इट हैज मेड अ परसेप्शन, बिकॉज ऑफ दैट इट हैज रिजल्टेड इन योर opinion about the hotel that the hotel is not good. Personality always play a very vital role. कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो ऐसी ही वॉच पहनूंगा, ये मेरी पर्सनालिटी को मैच करती है, मैं एक सिंपल वॉच पहन के नहीं जा सकता। मेरे बाजू में एक लड़का रहता है, उसके माँ बाप ने उसको बोला कि चल एक साइकिल दिला देते। जब वो साइकिल खरीदने गए, दे वर शॉक्ड बिकॉज द बॉय वॉज डिमांडिंग ओनली फॉर द गियर बाइसाइकिल। अब गियर बाइक की डिमांड करने लग गया तो घर वालों ने कहा कि अभी तुम्हारी वो एज नहीं है। तो वो बोला कि मेरे क्लास में सभी कोई ऐसी गियर वाली बाइक लेके आते हैं, मैं सिंपल बाइक लेके तो नहीं जाऊंगा। उसने अपनी पर्सनालिटी को उस हिसाब से कंपेयर किया उन लोगों के साथ में जो लोग ऑलरेडी क्लास में लेके आते हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस, आप कितना एक्सेप्ट करते हैं खुद को, चीजों को, सराउंडिंग्स को, स्टिमुलस को, उसके बेसिस पे भी आपका परसेप्शन बनता है। सो एज आई गेव यू द इंटायर परसेप्चुअल प्रोसेस, द एरोज आर इंडिकेटिंग टूवर्ड्स this direction, means they are affecting the throughputs. The arrow which is indicated towards here indicates that it is affecting the output, like for example the characteristics of the perceiver and the throughput, that is the entire process. The characteristics of stimuli influence the throughput and the perceptual process. The characteristics of the perceiver not only influence the throughput, but it also influence the perceptual output. So this is what I wanted to explain. Is that point clear to everyone? Any doubts so far? No doubt, sir. No, sir, no. I No, want sir. to ask everyone, if you have any questions, I would try to explain you with the help of some better common examples, real life examples. Any doubts? No, sir.